لیکن اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ قرضہ لے گا اور قرضہ لے کر پھر وہ قربانی کرے گا. تو اب یہاں پر بعض صورتیں جو مذموم بن جاتی ہیں, ناپسندیدہ بن جاتی ہیں کہ مقصد یہ لوگوں کو دکھانا بن جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ, تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں. اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے, پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور. ہاں, قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو. اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہو تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی, اور آج کل کے دور میں قرض تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بعد کوئی بھی نہیں بچتا. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ قرض لے کے قربانی کرنا کیسا ہے, یعنی کہ ادھار پیسے لے کے قربانی کرنا کیسا ہے. تو چند علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے موقف سنتے ہیں اس حوالے سے کہ جائز ہے ناجائز ہے, کیا معاملہ ہے. چلیں سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو مدنی چینل سے. کرنے کی چند صورتیں بنتی ہیں. قربانی کیوں کر رہے ہیں قرض لے کر؟ اب لے کر کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. ابھی فی الوقت پیسے نہیں ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گے, ان کے اوپر واجب نہیں ہے. اب یہ لے کے کر لیتے ہیں قربانی, بعد میں پیسے آئیں گے تو وہ دے دیں گے. اب اگر ان کو امید ہے کہ واپس کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی یہاں پر قباحت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں, لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ قربانی ہر سال کرتا ہے. صحیح. اب یہ نیت کرتا ہے کہ اس سال نہیں کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے, تانو تشنی کریں گے, ہاتھ تنگ ہے, بہت زیادہ قربانی واجب بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ قرضہ لے گا اور قرضہ لے کر پھر وہ قربانی کرے گا. تو اب یہاں پر بعض صورتیں جو مذموم بن جاتی ہیں, ناپسندیدہ بن جاتی ہیں کہ مقصد یہ لوگوں کو دکھانا بن جاتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے, مثال کے طور پر تو اب ایک عادت ہوتی ہے کہ اچھا جانور, بڑا جانور لے کے آئیں گے یا بکرا لیں گے. ایک بندے کے اوپر ایک پارٹی میں تو بکرا لے کر آتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واقعی اس کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ پورا جانور کر سکتا ہے, لیکن بعض اوقات بندے کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, قربانی لازم ہو رہی ہے اس کے اوپر, ایک ہی بندے کے اوپر لازم ہو رہی ہے. اب اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر حصوں والی قربانی ہوتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری قربانی اس دفعہ میں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی. تو اس لیے پھر وہ قرض لیتے ہیں اور اس وجہ سے بعض اوقات آزمائش کے اندر آتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے, جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق. صحیح ہے. تو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, استطاعت نہیں بن رہی, تو کہ آپ کو ڈر لگے لوگ آپ کو بولیں گے یار ہر سال کرتا ہے, اس سال کیوں نہیں کی, تو اس لیے آپ قرضہ لے کے کر رہے ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہو اس کے لیے آپ ایک حصہ ڈال لیں اس کے اندر. تو چلے اب مفتی اکمل صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا موقف سن لیتے ہیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی بچے نے پوچھا تھا کہ میں نے کچھ مینٹیننس لون لیا ہوا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ صحیح. دیکھیں اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے اور تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے. اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے, یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی. دوست نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو, میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں, جب میں مانگوں گا تم دے دینا. اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یہ تو اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ہے, قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے. تو گویا کہ آپ کا یہ 1 لاکھ قرض میں مستغرق ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ, تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں. اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے, پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے, وہ آپ پہ واجب ہوگی. قرض. تو آپ نے موقف سن لیا مفتی اکمل صاحب کا بھی, اور انہوں نے صحیح بتا دیا ہے, آپ کو موقف پیش کر دیا. چلیے مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. لے کر قربانی کر سکتے ہیں, قربانی کس پر واجب ہے, کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے. ہاں, قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو. یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس کا لیا وہ جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو
وہ बेचारा सारी सारी आपको सलवातें सुनाता रहे कि पी गया कर्ज लेके। तो कर्ज अदा करने की अगर पूरी पूरी कुदरत है तो कर्जा लेके भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी वाजिब किस पर है? वही 5 चीज़ों का निसाब है, सोना, चांदी, माल तिजारत, यानी माल तिजारत कहते हैं जो माल बेचने के लिए ख़रीदा हो, और करेंसी और ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ये 5 चीज़ें अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हैं, या 5 या 4 चीज़ें हैं, या 3 या 2 या 1 चीज़ भी होगी, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। बकरीद के 3 दिनों में अगर इतनी चीज़ें रहती हैं तो लमसम 40-50 हज़ार की मालियत का अगर किसी के पास ये सोना, चांदी या तिजारती माल या ज़रूरत से ज़ायद सामान अगर मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इस्तेमाल की चीज़ों पे कुर्बानी नहीं होती। आप घर में करोड़ों रुपए का भी घर है लेकिन अगर रह रहे हैं या किराए पर दिया हुआ है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है आप पर। गाड़ियाँ 10 रखी हुई हैं लेकिन सब इस्तेमाल में आ रही हैं तो कुर्बानियाँ वाजिब नहीं है। लेकिन एक भी गाड़ी है जो पूरे साल खड़ी रहती है, इस्तेमाल में नहीं आती, तो फिर कुर्बानी वाजिब है आप पर। तो 40-50 हज़ार लमसम मालियत का की रकम का जो शख्स मालिक होगा, अच्छा कर्जा भी माइनस किया जाएगा इसमें से, कर्जा माइनस करके इतनी रकम, तो इतनी रकम अगर आपके पास है या इतनी रकम का सोना चांदी वगैरह है आपके पास, तो फिर उसमें से आप पहले गैस बिजली का बिल और ज़रूरी राशन का खर्चा निकालेंगे। निकालने के बाद अगर इतना बचता है तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। बिल्कुल सही है। तो आपने तारिक मुस्तफा साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने कहा कि कुर्बानी वाजिब है, इस तरह से वाजिब हो सकती है, मामला तो उसके बता दिए, कितनी मालियत होनी चाहिए, सारी चीज़ें बता दी हैं। चलें एडवोकेट फैसल साहब के साथ पास चलते हैं, यानी उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, शुरू करते हैं। कुर्बानी कर सकता है क्या? आने का अच्छा सवाल कि अगर कोई शख्स कर्जदार है, मखरूज है, क्या वो कुर्बानी कर सकता है? देखिए, अगर आप कर्जदार है और आपको लगता है लेकिन मेरी इस्तिताअत इस महीने है कि कर्ज चुकाने के साथ कुर्बानी भी कर सकता हो, तो बिल्कुल कीजिए। कुर्बानी हर वो शख्स कर सकता है जिसको इस्तिताअत हो करने की। और आजकल के दौर में कर्ज तो एक ऐसी चीज़ है उसके बाद कोई भी नहीं बचता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन जिस पर कर्ज नहीं है? बताइए मुझे। मेरा कुछ पैसा दिया हुआ है, मेरे पे कुछ पैसा कर्ज है, सिस्टम ऐसी है। तो कभी कभार तो लाखों रुपए होना भी मैं खर्च नहीं मानता हूँ। समझ लो मेरा एक बिजनेस है और मुझ पे लाख रुपए है, जो मैं भी बिजनेस करता हूँ, लाख क्या कभी कभार तो 10 लाख रुपए मुझ पे खर्च रहता है। वही से एतबार से कि आज जमीन ली 20 लाख की थी, उधार ले ली, तो खर्चदार तो हुआ ना 20 लाख का। ठीक, 3 महीने की साइड पे लिया हूँ तो क्या मैं खर्चदार माना जाऊंगा शरीयतन? समझ रहे हैं बात को? आज के खर्च की नोयत वो नहीं है कि जिसके तले इंसान दबा हो, जिसको अदा करने के लिए मेहनत मशक्कत कर रहा हो और पसीना बहा रहा तो भी नहीं हो सका। समझा? तो अगर किसी पर ऐसा कर्ज हो जिसकी कोई मुद्दत ना हो, कभी भी दिया जा सकता हो, रूटीन कर्ज जो कि आजकल लिया और दिया जाता है, तो अगर आपकी इस्तात है उस कर्ज के चुकाने के साथ तो आप कुर्बानी कीजिए। आप पर ऐसा कर्ज है कि कुर्बानी करने से उस कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा कि इस महीने मेरा कर्ज 3000 रुपये देना है, कुर्बानी करूंगा तो 2000 चल जाएंगे, तो 2500 कहाँ से लाऊं? अगले महीने भी इनकम का कोई सोर्स नहीं, तो तब तो ये कर्ज बड़ा है मैं आपके लिए, तो आप मत कीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन आम तौर से कर्जदार तो सब कुछ है, करोड़पति आदमी 1 करोड़ का सामान दिया, 1 करोड़ रुपये उधार है, कर्जदार तो वो भी, लेकिन ये कर्जदार नहीं माना जाता है। तो कर्ज की नोयत अगर ऐसी है कि जिसके तले आप दबे हैं, मजबूर हैं, और वो देने से आपके जरिए जिंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो फिर वो कर्ज पहले दे दीजिए। फिर ऐसा नहीं सिंपल लाखों का कर्ज है लेकिन ये सब चलते रहता है, कर्ज आ रहा जा रहा, तो फिर आप कुर्बानी कीजिए। तो डिपेंड आपके कर्ज की नोयत क्या है उसके ऊपर बहरहाल इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कुर्बानी तो आपने एडवोकेट फैसल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने बिल्कुल सही बात बता दी। आप इंजीनियर साहब की तरफ चलते हैं, इंजीनियर साहब क्या कहते हैं इस हवाले से। दे दी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं, ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछे, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी, जो अमेरिकन बैल चिप फिट शुदा जो है मंगवा के यहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं। अगर आप उनको देखें मकरूज वो भी हैं। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं इतनी तनख्वाह लेके भी कि मेरा मुश्किल से चूल्हा जलता है, तो कुर्बानी तो प्राइम मिनिस्टर में भी कोई नहीं बन रही होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं तो वो इस तरह नहीं है, कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जा ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें, साली की शादी के लिए डालते हैं, भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हो तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। बिल्कुल सही है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपए लग जाता है, तो सर 12-13 हज़ार रुपए का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डाल लें। तो ये
जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को, 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है, तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। लोग इतने भोले बन के ना वो कहते हैं, कई लोग पूछ रहे हैं जी कर्जा भी है, ज़कात भी देनी है, तो कर्जा भी जो माइनस करेंगे, और माइनस भी कितने उल्टे तरीके से करते हैं, उस तरीके से तो उल्टा उसको ज़कात देनी पड़ जाएगी। वो पता किस तरह कर रहे होते हैं, मसलन एक बंदे का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपया उसका अपना था सरमाया, 60 लाख उसने बैंक से उठाया, सही कर्जा, कितना हो गया 1 करोड़। अब वो जब हिसाब करने लगता है ना साल बाद, वो कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपया कारोबार में लगाया हुआ है, तो 1 करोड़ की ज़कात जो है वो कैसे निकाली। वो फिर कहता है कि देखें जी मेरा तो अपना था 40, 60 मैंने बैंक से उठाया, तो 60 में से 40 निकल गए, तो 20 लाख का तो मैं अभी भी मकरूज हूं, तो मैं तो मकरूज हूं, मैं क्यों ज़कात दूंगा। हालांकि वो बेवकूफ भूल जाता है कि कारोबार में उसने 1 करोड़ लगाया हुआ है, ये 60 लाख 1 करोड़ में से माइनस होने हैं, 40 लाख में से नहीं माइनस होने। 40 लाख तो उसका अपना था ना, 60,000 उसने कर्जा उठाया, तो टोटल कितना हुआ 1 करोड़। अब कारोबार में 1 करोड़ लगा हुआ है, 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस होना है, अपने 40 जो भी 60 काट देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे माशाल्लाह आप इनको देखें, अनपढ़ चिट्टे अनपढ़ है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आपको जनाब जुबानी पूरे दिन का हिसाब किताब बता देंगे। बिल्कुल सही। और नाम नहीं अपना लिख सकते, कारोबार में इतने तेज हैं, दुआ कुनूत फिर भी नहीं याद होगी उनको, जनाजे तो वैसे ही नहीं आता ना, गौर पे कोई और। तो ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है कि कुर्बानी करने की सो दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया मैंने सारे उलमा कराम का, और कुछ लोग कमेंट्स करके बोल रहे थे यार आप हर मौक़िफ़ के ऊपर सही 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 कह रहे होते हैं। तो सही इसलिए कह रहा होता हूँ, मैं समझ रहा होता हूँ उनकी बात पे जवाब दे रहा होता हूँ कि सही है समझ के, फिर एंड में मैं आप थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ एंड के अंदर। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा यही कि जैसे वो कहते हैं ना इस्तिताअत होनी चाहिए, इसके लिए वाजिब है कुर्बानी करना। मैं आपको बताता चलूँ कि वाजिब नहीं है, कुर्बानी जो है सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत मौक़िदा है, कुर्बानी करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी करने वाले के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। और दूसरी बात ये कर्ज़ा लेके करें, कर्ज़ा अगर आप उतार सकते हैं तो कर्ज़ा लेके ज़रूर करें। जैसे कि आपके पास अगर 20,000 30,000 सैलरी वाला बंदा है, अगर वो सिर्फ़ घर के अखराजात ही उठा सकता है तो वो सिर्फ वो घर के अखराजात ही उठाए, कर्ज़ा ना ले कुर्बानी के लिए, क्योंकि वो फिर इस कर्ज़े के अंदर दब जाएगा, फिर वो उसका उतारना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सैलरी से निकाल भी नहीं सकता 2-3 हज़ार रुपये, अगर कमेटी भी डालेगा तो मुश्किल होगी उसके लिए। तो वो ऐसा शख्स जो कर्ज़ लेना चाहता है वो ना ले कुर्बानी के लिए। हाँ, उससे ज़्यादा अगर कोई कमाई इसकी अच्छी है, किसी शख्स की सैलरी ज़्यादा है, कमेटी डाल के वो कर्ज़ यानी कर्ज़ ही हो गया कमेटी एक तरीके से, तो वो कर्ज़ डाल के यानी कर्ज़ लेके कुर्बानी कर ले। ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, सुन्नत मौक़िदा है। लेकिन आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर देगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू, सबका तू हो रहनुमा।